Good morning to one and all present here on this platform of Facebook Live session. I welcome you all to this yet another webinar on identifying intellectual property components at the early stages of innovation, presented to you by the Institutional Innovation Cell, Sustekar Ratibad. Creativity is thinking up new things, and innovation is doing new things. It's always the new ideas that keep the world going. Had not someone dreamt of flying like a bird, we would not have been able to enjoy the aeroplane rides amidst the clouds. With the efforts of countries across the globe trying to felicitate education for all, certainly there is an enhancement in the field of creativity, research, and innovation. When these innovative ideas get floated in the market, security of these ideas become a prime priority. Here is where the term intellectual property rights pops up. Intellectual property rights is a hot topic of discussion in these times. IP refers to creations of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images, etc. To throw more light on the topic, we have with us our expert for the day, Dr. N.K. Chaube sir, Senior Principal Scientist and Head, Intellectual Property Felicitation Center, MPCST, Bhopal. Welcome you, sir. Sir is a PhD in geology and has a working experience of 30 years in fields like application resources inventory, planning, management, and execution of plans, state, national, and international projects and programs of Government of MP, Government of India, World Bank, and UNICEF. For the past 13 years, Sir has been handling intellectual property rights and technology management related works, projects, and programs under Department of Science and Technology, Department of Scientific and Industrial Research, and Government of India schemes. Thank you, sir, for accepting our invitation, and over to you to enlighten our viewers with your expertise. Over to you, sir. Thank you, Stuti. Good morning to all. As Stuti has introduced me, I would like to add 2-3 little things. That the Patent Information Center, MP Council of Science and Technology, is serving since 1997 in the field of intellectual property rights. It helps to aware students, academics, researchers, and industrialists to know more about the intellectual properties, creativity, whatever product or process they have developed should be protected, how they should be protected, and where it should be protected. So we help them to identify various types of intellectual properties and also assist technically as well as legally with the help of the experts and experienced attorneys of the country to help file their intellectual property applications in the concerned offices so that they can get their IP rights at right time, right place, and further they can commercialize their process and product, including other intellectual property rights. So this is a very positive scenario of the state that the Indore and Bhopal are leading in filing the intellectual property applications, and till date more than 10 patents has been granted
and more than 25 patents has been filed from our office, as well as the design, copyright, trademark, and other applications were also came to us to process. So these are also in process. So I do not give you the exact number of other intellectual property rights which were filed or uh, granted, but more than 100 rights has been still granted from our office, and rest are waiting. And number of the IPs are also IP applications are also raising from our state. So, looking the convenience of our participants, I would like to use English so that everyone can understand the subject better. Yes. नमस्कार. सबसे पहले मैं प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, जो फेमस एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उनका एक कोटेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा था कि यदि हम किसी भी सब्जेक्ट की क्रिएटिविटी को समझना चाहते हैं और क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट को मदर टंग में पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतर हम मदर टंग में समझ सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में काम करने में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होती है कि पहले हम जो ओरिजिनल थॉट्स हैं उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए हमारी जो मदर टंग है या जिसकी भी जो भी मदर टंग है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसका एग्जाम्पल हम अपने कंट्री के अलावा देख सकते हैं कि चाहे चाइना हो, जापान हो, फ्रांस हो और अदर कंट्रीज हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बाद भी जो इनोवेशंस हैं वो या जो उनके आईपी राइट्स हैं वो दुनिया में किसी भी कंपटीशन से कम नहीं है, बल्कि उनके जो राइट्स हैं वो जरूर हमारे यानी जो अदर कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी तुलना में आप देखेंगे कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जापान में तो एक सिंगल पर्सन के 5,000 से ज्यादा पेटेंट। ये पॉसिबल है क्या? मतलब हमारे इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं, परंतु 5,000 पेटेंट एक पर्सन यदि लेता है तो निश्चित तौर पर वो कितना क्रिएटिव होगा, जबकि उसको इससे परवाह नहीं है कि मुझे इंग्लिश का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। मेनली उसकी जो रिसर्चेस हैं वो जो उसने एक्सप्रेस की है या पब्लिश की है या जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो सारी जापानीज में है, भले उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। तो यहाँ जो आज का टॉपिक है कि अर्ली स्टेज ऑफ इनोवेशंस में जो हमारे इनोवेशन जो आईपी कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल बनाया है, ये इसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है कि आप लोगों को न सिर्फ एकेडमिक वर्क, बल्कि जो एकेडमिक को हम किस तरह से इंडस्ट्री के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, और उसका हम जो कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसको किस तरह से अप्लाई करें, उसको किस तरह से यूज करें, इसके लिए किस तरह से हमारी डिमांड आए, इसके लिए इस तरह की जो काउंसिल है या इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है वो फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक क्या होता है कि जैसे अभी कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग के फील्ड में रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा जोर था, और रोबोटिक्स में क्या होता था कि अधिकतर सारे इंस्टीट्यूट जो है रोबोटिक्स पर ही काम कर रहे थे। जब आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे और बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो उसमें जो क्रिएटिविटी है या उसमें जो वर्क है या जो न्यू वर्क है उसकी संभावना कम हो जाती है। इसलिए डाइवर्सिटी वर्क में होना बहुत जरूरी है। यहाँ हम आप लोगों को 3-4 टर्म्स हैं जिससे हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। एक टर्म जो हम सब लोग कॉमनली यूज करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तीसरा, इन्वेंशंस। फिर इनोवेशंस। इन सब और डिस्कवरी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमको जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इन वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं तो हमको किसी भी तरह के ट्रेडिशनल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, उनका
कमर्शलाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ये बात भी समझ में आती है, और फ्यूचर में उसके क्या स्कोप हैं उसको समझ करके उसको अप्लाई करने में हमारे पास में बहुत सारा पोटेंशियल हो जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसा कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पारंपरिक ज्ञान है। परंपरागत तरीके से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी ज्ञान यदि चला आ रहा है तो परंपरागत ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाता है। परंतु हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई प्रॉपर या सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं था। इसका फायदा अमेरिका में जो हमारे कुछ एनआरआई इंडियंस यहाँ से गए थे उन्होंने उठाया, और वहां की कंपनियों के साथ में, वहां के अटर्नीज के साथ में मिलकर के उन्होंने बासमती राइस, नीम और हल्दी, इनका पेटेंट करा लिया। यदि वो पेटेंट वहां हो जाता तो जो चीज हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ्रीली यूज करते हैं। यदि कोई पेटेंट ले लेगा तो वो आपको यूज को रोक सकता है, उस पर रॉयल्टी ले सकता है, उस पर अपनी फी ले सकता है, और आपसे उसके बदले में इस्तेमाल के पैसे भी मांग सकता है। तो इस तरह से जो यदि ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में हमको बहुत सारी जो जानकारी नहीं है और उसका डेटाबेस नहीं है, तो उसका जो नुकसान है वो उस कंट्री को, वहां लोगों को और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होता है। इसी कड़ी में जब इस तरह का केस आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSIR की मदद से ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया, और उस लाइब्रेरी में खासतौर पर जो मेडिसिन हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको लेकर के उसका जो डेटाबेस है वो ह्यूमन बेस्ड एज वेल एज द टेक्स्ट बुक बेस्ड, इस तरह से सब डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट किया। यदि वो किसी अदर लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, प्रॉपरली उसको सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया और उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। इसलिए TKDL जो लाइब्रेरी है वो इंडिया की सबसे रिच ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी है, जिसका इस्तेमाल यदि कोई भी पर्सन या कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंस्टीट्यूट जो इंडिया में अपनी एप्लीकेशन पेटेंट की फाइल करता है, और यदि ये उसमें कहीं किसी तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज की संभावना दिख रही है कि इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज भी इन्वॉल्व है, तो हमारा जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ऑफिस का हेडक्वार्टर है वो, उसके जो अथराइज्ड एग्जामिनर्स हैं वो CSIR के पास में जाकर के उनकी मदद से उस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि कहीं एप्लीकेशन में इंडिया के किसी ट्रेडिशनल नॉलेज का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या वो यहाँ से इंफॉर्मेशन चुरा करके उसको अपने नाम पर तो जो रजिस्टर कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमारे जो आइडेंटिफाइड योग के आसन हैं लगभग 152 के आसपास, उसमें से 128 के आसपास तो अमेरिका ने अपने अमेरिका में बहुत से लोगों ने उनका पेटेंट करा लिया है, जबकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज है तो हम तो फ्रीली यूज कर सकते हैं, परंतु अमेरिका में कोई भी पर्सन यदि किसी तरह के योगासन को इस्तेमाल करता है तो जो उन 128 में आते हैं तो उनको, जिन लोगों के नाम पर पेटेंट है उनको रॉयल्टी पे करनी है। यानी ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। भले ही वो जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो, परंतु उतने पीरियड के लिए तो उनको रॉयल्टी या पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज है जो हमारी सोसाइटल नॉलेज है, और सोसाइटल नॉलेज का कोई भी पर्सन फ्रीली यूज कर सकता है। इसी कड़ी में जैसे हम लोग जो है वो अभी आज का जैसे मौसम है तो आपको चाय पीने में आनंद आता है। चाय भी कैसी, उसमें अदरक भी होना चाहिए, काली मिर्च भी होना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी है, या काढ़ा के स्टाइल में बना के आप उसको पीते हैं तो यदि किसी को थोड़ा बहुत भी फीवरिश होगा या कोल्ड होगा, शिवरिंग होगा, तो उसको उसका फायदा मिलता है। कफ एंड कोल्ड होगा तो वो भी कंट्रोल होता है। ये क्या है, ये हमारा ऐसा फार्मूला है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और दादी नानी के समय से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, और कोई भी इसका इस्तेमाल फ्रीली कर सकता है। इसके लिए किसी को कोई पे नहीं करना। परंतु यदि कोई चाहे कि इसको हम कमर्शियली यूज करें तो वो उसका ट्रेड कर सकता है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता कि ये फार्मूला हमारा है। यानी वो काढ़े का फार्मूला बना करके लोगों को बेच के पैसे कमा सकता है। जैसा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि कुल्हाड़ मिट्टी के बने होते हैं, वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के पॉट हैं, अर्दन पॉट्स हैं। और अभी जो पिछले कुछ सालों में चलन आया है कुल्हड़ वाली चाय,
कुल्हड़ वाली चाय को बेसिकली जो है आपके पीतल के बर्तन में उबाल करके और फिर उसको बहुत गर्म जो अर्दन पॉट है कुल्हड़ उसको गर्म करके उस पर उसको छोका लगा करके उसको गरम गरम पॉट उसमें डाल के मिट्टी का सौंधापन लाया जाता है और फिर मिट्टी के ही बर्तन में कुल्हड़ में उसको सर्व किया जाता है। तो उसका जो स्वाद है वो नॉर्मल चाय से अलग हो जाता है ये ट्रेडिशनल नॉलेज। परंतु बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे से अपने जो है टी शॉप्स ओपन की और वो बेचना शुरू कर दिया। तो यदि वो बेच रहे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। परंतु कोई यदि ये कहे कि ये सिर्फ हमारा एक अधिकार है या हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात हम इसी कड़ी में आगे करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जो है वो हमारी जो ब्रेन की क्रिएटिविटी और ब्रेन की जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है वो यदि किसी प्रोसेस या प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है, यदि आइडिया होगा तो आइडिया आपका किसी भी तरह का जो राइट है उसमें रजिस्ट्रेबल नहीं है, परंतु उसकी क्रिएटिविटी का कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस है तो वो रजिस्ट्रेबल जरूर होगा। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी है वो सारी क्रिएटिविटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट होती है, जिसको हम लोग अभी पीपीटी में भी डिटेल में देखेंगे। इसी में जब हम इन्वेंशंस की बात करते हैं तो इन्वेंशंस को आप लोग जैसा समझते हैं कि पहले जो बेसिक साइंसेस थी, थ्योरीज थी, उसमें किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे टेबल फैन हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, ये सब के सब जब, या स्टीम इंजन हो, ये सब के सब जब जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में आए तो जिन्होंने इसको बनाया था उनकी क्रिएटिविटी थी, उस पर उनको उसका राइट जो फाइल किया उन्होंने उसका राइट उनको मिला, एक अधिकार मिला, उनको पेटेंट मिला, जिसके लिए बाकी लोगों ने यदि इस्तेमाल किया तो उनको रॉयल्टी पे करना पड़ी। तो पेटेंट के डिटेल्स हम अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ जो इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस बेसिकली न्यू, नॉवल, नॉन ऑब्वियस और यूजफुलनेस, इस डेफिनेशन में यदि आते हैं तो वो आपका इन्वेंशन में आएगा। और इन्वेंशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रिवोल्यूशनरी हो सकता है जो बिल्कुल न्यू हो, और दूसरा जो है इंक्रीमेंटल हो सकता है, यानी जिसमें यदि कोई ऑलरेडी कोई इन्वेंशन हुआ है उस इन्वेंशन में फर्दर जो है वो मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है वो है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से गाड़ियां चलनी शुरू हुई और उसी कड़ी में जब इलेक्ट्रिक इंजन तैयार हुआ तो वो इन्वेंशन तो था परंतु वो इंक्रीमेंटल था, यानी भाप के बजाय वो बिजली से चलने लगा। तो ये जो है इंक्रीमेंटल इन्वेंशन का एग्जाम्पल है। पर अभी वर्तमान में जो टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है इनोवेशन। इनोवेशन बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट में यदि हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो इनोवेशन कहलाता है। तो चूंकि वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है, अदरवाइज हमको इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों में डिफरेंशिएट करके अलग अलग बातों के विषय में बताना चाहिए। पर इसमें भी यही दो कैटेगरी हैं कि एक रिवोल्यूशनरी और एक इंक्रीमेंटल। रिवोल्यूशनरी कौन सा होगा? जिसमें यदि इस तरह के फीचर्स आ जाएं, इस तरह के यूजफुलनेस या चीज आ जाए कि जो पहले हमने देखी ही नहीं थी, परंतु उसी में फर्दर चेंज होता रहे। तो चेंज होने के साथ साथ में जो उसमें हमें डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट मिलेंगे, उनकी उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ उस प्रोडक्ट की उपयोगिता बढ़ती जाती है। तो वो उसमें इंक्रीमेंटल चेंज होंगे जो टाइम के साथ साथ में उसमें बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि जब सबसे पहले मोबाइल फोन आया था तो कीपैड फोन आया, यानी रिवोल्यूशनरी था। जैसे कि कभी भी आप देखेंगे कि टेलीफोन को तो आप जो वायर्ड था उसको आप एक जगह फिक्स रखेंगे, परंतु मोबाइल आने के बाद में क्या हुआ कि उसको आप कहीं भी लेकर के मूव कर सकते हैं और कहीं भी आपको उससे जो कनेक्टिविटी है वो मिलती थी। तो ये रिवोल्यूशनरी चेंज था, रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ इन्वेंशन और इनोवेशन। और इसके बाद जब धीरे से आपका डिजिटल फॉर्म में टच स्क्रीन आई तो टच स्क्रीन जो था वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन या इन्वेंशन था। फिर इसके बाद में प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती चली गई, क्लॉक स्पीड बढ़ती चली गई, मदरबोर्ड में मॉडिफिकेशंस होते चले गए, कैमरे के
कैमरे का जो मेगापिक्सल है उसमें इंक्रीज होता चला गया, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़ते गए, उसमें रेडियो की फैसिलिटी हुई, उसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हुई, उसमें हम जो है जो कंप्यूटर की तरह दूसरे काम करने लगे वो चेंज होते थे। तो ये सब जो है इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, और ये इंक्रीमेंटल जो इनोवेशंस और इन्वेंशंस हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की न्यू रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस। और इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट करते हुए इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इसका जो अथराइज पर्सन है, जो क्रिएटिव पर्सन है, वो इनको रजिस्टर करा सकता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ इनोवेशन में हमको दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एकेडमिक्स में हमारे वो लोग जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या कोई भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक चूज करने के पहले वो देखते हैं कि तीन चार जो रिलेटिव टॉपिक्स हैं वो पहले चूज करते हैं। चूज करने के बाद में जो रिव्यू रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उपयोग करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्या होता है कि अभी तक जितना भी काम हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है, उस रिसर्च को हमको रिपीट नहीं करना, उसके आगे का काम करना है। जब हम उसका आगे का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आ, आपके पास में ये देखना जरूरी है कि प्रीवियस लिटरेचर में क्या क्या अवेलेबल था ताकि हम उसके आगे का काम कर सकें। तो इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी डेटाबेस होता है। यह डेटाबेस पेटेंट का भी है, ट्रेडमार्क का भी है, डिजाइन का भी है, कॉपीराइट का भी है, और इनके रजिस्टर्ड और फाइल्ड एप्लीकेशंस के जो डिटेल्स हैं वो कंसर्न ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। पेटेंट का तो पेड और फ्री डेटाबेस भी अवेलेबल है, जिनके बेसिस पर जब हम कोई नया इनोवेशन स्टार्ट करते हैं तो पहली जरूरत हमारी यही है कि हम ये जरूर देखें कि जिस तरह से भी आपका जिस सब्जेक्ट पर या जिस मैटर पर आप करना चाहते हैं उसका आप जो लिटरेचर रिव्यू है वो जरूर कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने काम स्टार्ट कर दिया, एक साल आपने काम कर लिया, और बाद में जब आप सबमिट करने के लिए गए या फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो पता चला कि ये वर्क तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपका वर्क जो है यूजलेस हो जाता है। तो इसी तरह से यदि आपका रिसर्च वर्क यूजलेस हो गया तो उसमें से निकलने वाला जो आपके जो इनोवेशन से निकलने वाला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था वो जीरो हो जाएगा और आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो चाहे रिसर्चर्स के लिए शोध गंगा की साइट हो, चाहे आईपीआर का जो पेटेंट डेटाबेस हो, ये सब इसलिए अवेल कराया जाता है कि आपकी रिपीटिटिव जो स्टडी है, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है वो ना हो, वर्क रिपीट ना हो, और आपका टाइम और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो आपने टाइम कंज्यूम किया हुआ है वो वेस्ट ना हो। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए यहाँ बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में कौन कौन से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं इनकी बात हम ये करेंगे। इसी में हम एक शब्द और जो एक वर्ड टर्मिनोलॉजी जो और रह गई है उसकी हम बात करेंगे, डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब होता है खोज, जो शाब्दिक अर्थ है, और खोज का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट या प्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड है परंतु बहुत लंबे समय से उसके बारे में कोई हमको नॉलेज नहीं है और हमने उसको फिर से जो है वो पा लिया, उसके बारे में जान लिया, तो वो जो है डिस्कवरी की कैटेगरी में आएगा। जैसे कोलंबस जब अमेरिका कॉन्टिनेंट गया तो पहली बार वो जो है यूरोप से जब अमेरिका पहुंचा तो उसको एक नया कॉन्टिनेंट मिला, पर अमेरिका कॉन्टिनेंट तो पहले से था ही। तो आज भले हम कहते हैं कि आज हम भले ये कहते हैं कि आ, आ, अमेरिका था, परंतु सबसे पहले उसको उस जगह पे पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा था? कोलंबस। इसलिए आज भी उसको आज भी उसको जो उसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है। जैसे वास्को डी गामा जब यूरोप से अपना रास्ता खोजते खोजते इंडिया आया तो यहाँ भी उसको
कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। परंतु इस तरह की जो खोजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं नेचर में, उनको किसी भी आईपी के अंतर्गत, आईपी राइट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं कराया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। तो इन्वेंशन और इनोवेशन तो राइट के जो राइट है, आईपी राइट्स हैं, वो रजिस्टर हो सकते हैं, परंतु डिस्कवरी के जो राइट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी लगभग नहीं होती। अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड हमारी आप लोग देख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड फॉर साइंस एंड एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वर्चुअल ऑफिस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की जो वेरियस एक्टिविटीज हैं उनके साथ साथ में जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट करने की और फैसिलिटेट करने की जो फैसिलिटी है उसका आप लाभ जरूर लें। इसमें हमारा जो ईमेल आईडी है PICMPCST97@gmail.com, इस पर आपकी अभी या फ्यूचर में कोई भी क्वेरी होती है तो सभी लोगों का स्वागत है, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्विक रिस्पांस देंगे। साथ ही यदि कोई अवेयरनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आप करना चाहते हैं या आप कोई भी आईपी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको टेक्निकली असिस्ट करते हैं। बस यही होता है कि जहां पर डिटेल बात होती है, जहां अटर्नी की हेल्प होती है, वहां पर आपको उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपको बियर करना होता है। हमारी जो डिपार्टमेंट है उसके पास में बजट प्रोविजन ना होने से वो हम आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि हम लोग अभी पहले ही चर्चा कर रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मतलब जिसको होल्ड कर सकते हैं, उस पर अधिकार कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ये इस तरह की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब जो हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों फॉर्म में होती है। यदि कोई बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, लैंड है, फॉर्म है, तो वो इमूवेबल है, जिसको हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। पर कार है, ऑर्नामेंट्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, इस तरह से जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखते हैं। और इन दोनों तरह की प्रॉपर्टीज का ऑनरशिप आपके पास में ये बताने के लिए आपके पास में या तो जो इस तरह की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के पेपर्स होंगे या सेल पेपर्स होंगे या आपके पास में जो है वो रिसिप्ट होगी, जो आपने जहां से परचेस किया है वो सारी रिसिप्ट आप रखते हैं, तभी आप उसकी जो ऑनरशिप है वो बता पाते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर हमारा अधिकार है। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि उसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे पेटेंट हो या कॉपीराइट हो या डिजाइन हो या ट्रेडमार्क हो, उसको महसूस कर सकते हैं। परंतु आप जब उस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास जाकर के रजिस्टर करा लेते हैं, तब वो प्रॉपर्टी के बदले में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप उसको टेंजिबल में कन्वर्ट करके उसका कमर्शियल उसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल और ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पर उस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप कोई दूसरा यदि उसका यूज कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं, कानून आप लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो और अपने नाम पर जो उसको कंफर्म रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं ये सब हमारी क्रिएटिविटी है, माइंड की क्रिएटिविटी है, इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ माइंड भी कहते हैं। और दिस इज द वैल्यू टू सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। और यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब रजिस्टर हो जाती है और एक टाइम पीरियड के बाद में जब उस पर्सन का राइट इस पर से खत्म हो जाता है तो ये जो सोसाइटल राइट हो जाता है। जैसे गांधी जी के थॉट्स हैं,
प्रेमचंद की कहानियां हैं, रामायण है, महाभारत है, या चेतन भगत के नॉवल हैं, ये सारी जो हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ माइंड है। पर यदि आप चेतन भगत के नॉवल को छोड़ दें तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज अब पब्लिक डोमेन में यानी सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो गई हैं। चेतन भगत के पास में अभी राइट्स हैं जब तक कि वो उसकी लाइफ है प्लस 60 ईयर्स, उसके बाद ही वो फ्रीली अवेलेबल होगी। अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जब आप बुक परचेज करते हैं तो आपको उसकी रॉयल्टी पे करना होती है। या कोई भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमारी थ्योरेटिकल बुक्स हैं, साइंस की हैं, सब्जेक्ट्स की हैं, तो जो हम परचेज करते हैं उन पर कॉपीराइट होता है और वो कॉपीराइट के लिए हम पे करते हैं। तो क्या क्या उसमें आता है वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ जो है इंडिया में, हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और जो डिफरेंट राइट्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं, जिनकी एक लिस्ट आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जिनमें पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। ये इतने तरह के राइट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि सिर्फ हम पेटेंट की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिर्फ पेटेंट अकेला नहीं आता है। पेटेंट के अलावा ये इतने सारे जो हैं टाइप्स ऑफ राइट्स हैं जिनको पेटेंट नहीं मिलता है उनको अदर राइट्स भी मिल सकते हैं, और इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। पेटेंट का जो एक्ट है वो 1970 में तैयार हुआ था। इसके बाद कंटिन्यूसली 1999, 2002 और 2005 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए, और अभी लेटेस्ट कुछ साल पहले ही नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी तैयार हुई है, जो उनकी जो हमारी आईपी इंडिया की वेबसाइट है उस पर देखी जा सकती है, नीति आयोग की वेबसाइट्स पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की साइट्स पर भी देखी जा सकती है। दूसरा राइट जो है, तो ये जो पेटेंट राइट है, जिस दिन हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस दिन से लेकर के वो हमको 20 साल के लिए ये राइट मिलता है। इसमें दो तरह की एप्लीकेशन फाइल की जाती हैं। एक, जैसे ही आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च वर्क स्टार्ट करने के लिए आप अपने कंपटीटर को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो राइट है वो फर्स्ट टू फाइल है, जिसने अपनी एप्लीकेशन पहले फाइल कर दी राइट उसी को मिलेगा, भले ही जो है दूसरे ने पूरा काम कर लिया हो, और यदि फाइल नहीं किया है तो उसका जो राइट है वो लूज हो जाए, वो लूजर हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं तो भले ही आपका वर्क कंप्लीट ना हुआ हो, कंप्लीट वर्क करने के बाद में आपको जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उससे 12 महीने का समय मिलता है कि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके कंप्लीट जो एप्लीकेशन है उसको फाइल कर सकें। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आपको समरी देना होती है, एक गवर्नमेंट की फी देनी होती है, और जो टाइटल है वो देना होता है, जो इससे आपकी जो प्रायोरिटी है वो रजिस्टर हो जाती है। और जो डिटेल जब तक आप फाइल नहीं करेंगे 12 मंथ के भीतर, तब तक आपकी एप्लीकेशन आगे मूव नहीं करेगी, ना उसका पब्लिकेशन होगा, ना एग्जामिनेशन होगा, और ना ही आगे जाकर के उस पर एग्जामिनेशन के बाद में रिजेक्शन या जो एक्सेप्टेंस की कार्रवाई नहीं होगी। और 20 साल के लिए ये जो राइट है जिस दिन हमने एप्लीकेशन सबमिट की है उस दिन से मिलता है। यदि 20 साल के बाद में 1 सेकंड भी हो जाता है तो वो राइट उसके पास में नहीं रहता है, वो पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी आपकी आ, आ, ये जेनरिक मेडिसिन आ रही हैं जो बहुत सस्ती हैं, उस सबका कारण यही है कि फार्मा कंपनियों ने जिन्होंने वो सब बनाई थी मेडिसिन, वो सबका जो राइट है वो उस कंपनी का राइट या उस पर्सन का राइट खत्म हो गया है। इसलिए अब कोई भी कंपनी उसका प्रोडक्ट बना सकती है और बना करके मार्केट में सेल कर सकती है। इसलिए जेनरिक मेडिसिन हैं बहुत सस्ती मिलती हैं, जबकि पेटेंटेड ड्रग्स की कॉस्ट जो पर्टिकुलर कंपनी ही बनाती है, भले ही उसमें उसने कुछ अपना जो फॉर्मुलेशन और ऐड कर दिया हो, परंतु यदि पेटेंटेड है वो तो उसकी कॉस्ट आप देखेंगे कि काफी अधिक होती है। तो कंपनियां नॉर्मली क्या करती हैं कि कोई भी मेडिसिन जेनरिक, खासतौर पर फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, दो सेक्टर जो हैं इसमें रिवोल्यूशनरी है, इसमें सबसे ज्यादा जो है इनकम या ग्रोथ होती है इंडस्ट्री की। तो यहाँ इनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी पेटेंट का प्रोडक्ट या प्रोसेस को एंड होने के कम से कम 5 साल पहले ही उनकी कोई
नई जो पेटेंट प्रोसेस या प्रोडक्ट है वो अ, अ, जो रजिस्टर हो जाए और उसको वो फिर 5 साल पहले लॉन्च कर देते हैं, या 5 साल पहले से स्टार्ट करके जैसे ही 20वां साल उनका कंप्लीट होता है वैसे ही लॉन्च करके फिर से उसमें जो इंक्रीमेंटल चेंज करके या मॉडिफिकेशन करके उसका जो फायदा है वो अगले 20 साल तक फिर लेते रहते हैं। परंतु आईटी सेक्टर में जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आप देखते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी 6 महीने या 1 साल से ज्यादा नहीं चलती है, यानी मैक्सिमम आप उतना ही फायदा ले पाते हैं, उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में। तो इसलिए अब जो कंपटीशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पेटेंट में खास तौर पर जो अभी फार्मा सेक्टर है उसका बहुत ज्यादा होल्ड था, पर धीरे धीरे अब दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। दूसरा, डिजाइन एक्ट जो 2000 है वो लागू है। कोई भी जो प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई भी जो वस्तु है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे ग्लास हो, चाहे आपके जो है कुकिंग आइटम्स हो, या आपकी जो है कटलरीज हैं, आप जब भी देखते हैं तो जो शेप और डिजाइन आपको पसंद आता है उसको आप परचेस करते हैं, जो आंखों को अच्छा लगता है। तो ये जो डिजाइन एक्ट है इसके अंतर्गत ये रजिस्टर होता है, और इसका जो पीरियड है वो 10 साल होगा। 10 साल के बाद में उसको अधिकतम 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और पर 15 साल के बाद आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, ये ऐसे मार्क हैं जिनसे किसी भी तरह का बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है। और ये जो 1999 का एक्ट है इसके अंतर्गत कोई भी यदि ट्रेड या बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करता है, कराता है या करता है, तो इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। यदि वो नहीं लेता है तो यदि कोई दूसरा उस तरह के लोगों का या उससे इस्तेमाल कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो उस पर्सन को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई दूसरा, तो उसको रोकने के लिए जो लीगल एक्टिविटी करेगा उसको खुद सिद्ध करना पड़ेगा कि ये हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से आपको राइट मिल जाता है, तो आप कोर्ट में उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते हैं कि ये इस तारीख से जो जो है बिजनेस हम ये कर रहे थे, ये हमारा मार्क था और इसने वायलेट किया है, इसलिए ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर इतना या तो पेनल्टी की जाए या इम्प्रिजनमेंट किया जाए। दूसरा, जैसे हम बैंक्स देखते हैं तो टाटा है, मारुति है, सुजुकी है, ये सब जो है जो ट्रेड कर रहे हैं, ये इनके आप मार्क जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो देखते हैं कि उसमें उनका पर्टिकुलर मार्क होता है। इसी तरह से जो बैंक्स हैं सभी बैंक्स के अपने अपने अलग मार्क हैं। एसबीआई है, या पंजाब नेशनल बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या हमारा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप जो एम्बलम्स देखेंगे, सभी के अपने अपने जो मार्क हैं जो ये शो करते हैं, ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सर्विस देने वाले या जो गवर्नमेंट बॉडी है, या ये जो है ट्रेड करने वाली बॉडी है, जो मार्क से पता चलता है। इसका भी जो राइट है वो इनिशियली 10 साल के लिए मिलता है, और 5-5 साल के लिए आप अलग अलग अनलिमिटेड पीरियड के लिए इसको बढ़ा करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि जैसे टाटा है या बहुत पुरानी कंपनियां भी हैं, तो उनके भी जो मार्क हैं अभी तक लंबे समय तक सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो उनको उनकी कंटिन्यूटी को 5-5 साल के लिए लगातार बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट राइट है जो आप देख रहे हैं, कॉपीराइट। कॉपीराइट जो एक्चुअली है ओरिजिनली 1957 का राइट एक्ट है, जिसमें 83, 84, 92, 94, 99 और 2012 में लगातार अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। और इनके बावजूद भी कई बार अभी तक जहां तक देखने में आया है कि पहली जो कॉपीराइट था उसमें सबसे ज्यादा फायदा पब्लिशर को होता था, राइटर को उतना नहीं होता था। परंतु धीरे धीरे ये जो राइट्स हैं, राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर और आथर, इन सबको भी राइट्स की जो लिमिट है इनकी बढ़ाते चले गए हैं, जिसकी वजह से कि अब उनको भी उतना फायदा होने लगा है जितना कि जो पब्लिशर को होता है। पब्लिशर के कंपैरिजन में उनको भी कम फायदा नहीं होता है और उनका राइट भी प्रोटेक्ट होता है। ये जो राइट है ये आर्टिस्टिक वर्क के लिए, लिटरेरी वर्क के लिए,
सिनेमा वर्क के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए और एक्टिंग और ड्रामा के लिए मिलता है। यदि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसके लिए भी जो है वो कॉपीराइट होता है। इसका जो पीरियड है, यदि ब्रॉडकास्टिंग या ऑडियो वीडियो है तो वो 25 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स तक उसका जो राइट है वो मिलता है। यदि लिटरेरी वर्क है तो वो लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक उसका राइट बना रहता है उस पर। ये काफी लंबे समय तक मिलने वाला राइट है। इसी तरह से लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बेसिकली जो इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, परंतु इसका एक्ट जो 2000 का है, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है कम है, पर अभी मेक इन इंडिया में धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो कोई भी आपने मदरबोर्ड देखा होगा, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे टीवी का हो, यदि कोई खराब हो जाता है कोई भी सिस्टम, तो आप किसी भी पर्सन के पास जाके उसको रिपेयर नहीं करा सकते हैं। पर यदि पर्टिकुलर कंपनी का है, जैसे सोनी का है या डेल का है या एचपी का लैपटॉप है, तो आपको उनके सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि जब ओपन होता है तो बैक साइड में ग्रीन कलर की एक पैनल होती है जिसमें बहुत सारे सर्किट्स बने होते हैं। ये सारे सर्किट्स जो हैं ये लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। और ये हर कंपनी का जो लेआउट डिजाइन है ये अलग अलग होता है। उसका इंजीनियर ही इसके लिए जो है वो स्किल्ड होता है कि उसको वो प्रॉपरली रिपेयर कर सके। तो ये राइट भी जो है वो 10 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स के लिए वो मिलता है, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो ज्यादातर विदेशों से हमारे यहाँ आती हैं, इसलिए उनका राइट वहाँ वो रजिस्टर होता है इस तरह का राइट, और हमारे यहाँ उसकी मार्केटिंग होती है। इंडिया में ये जो राइट है ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके पास में इसका राइट है। जबकि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और पेटेंट के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए राइट देता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ऑफिस आता है, उसी के अंतर्गत अब जो कॉपीराइट का ऑफिस है वो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क की भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। डिजिटल एप्लीकेशन ऑनलाइन यदि हम फाइल करना चाहते हैं तो हमारे पास में डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। परंतु हम यदि वो एप्लीकेशन को फाइल करना चाहते हैं कि ऑफलाइन यदि फाइल करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन बना के डुप्लीकेट में जो उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें सबमिट करना होती है, और फी आप ड्राफ्ट के थ्रू जो है सबमिट कर सकते हैं। पर इसमें आपको जो 10% फी है वो एक्स्ट्रा देनी होती है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। फिर यदि हम अदर राइट्स के बाद में एक और राइट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इसको हम ट्रेड सीक्रेट भी कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट में हम दो पार्टियां जो हैं वो अपने फार्मूले को डिस्क्लोज नहीं करते, किसी को नहीं बताते, और जब किसी को नहीं बताएंगे तो वो सीक्रेसी जो है बरकरार रहेगी। इसमें दोनों पार्टियां आपस में से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं 1872 के एक्ट के अंतर्गत। तो हम लोग यदि देखेंगे तो कोका कोला एक ऐसा फार्मूला है जिसका टेस्ट हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी, हमने भी, और आगे की पीढ़ियां भी जो है वो जो देख रही हैं, उसका टेस्ट बरकरार है, वही टेस्ट है, वही स्वाद है, उसी तरह की वो जो प्रोडक्ट है वो आज भी अवेलेबल है। वो ट्रेड सीक्रेट है। इसमें दो पार्टनर हैं, दोनों भाई हैं, आधा फार्मूला एक के पास में है, आधा फार्मूला दूसरे के पास में है, दोनों आधा आधा फार्मूला बनाते हैं। पीढ़ियों दर पीढ़ी यही प्रक्रिया चलती आ रही है, और दोनों का फार्मूला जो मिक्स किया जाता है तभी पूरा कोका कोला का फार्मूला तैयार होता है। तो उनकी बोतल को यदि आप देखेंगे तो बोतल में मजेदार बात यह है कि उनका जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ट्रेड सीक्रेट है, उनकी जो बोतल है वो पेटेंटेड है, क्योंकि वो बोतल जो है अनब्रेकेबल है, इस तरह के मटेरियल की बनाई गई थी। उसकी डिजाइन यूनिक है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन है। उसका ट्रेडमार्क जो कोका कोला जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ में लिखा हुआ है वो ट्रेडमार्क है उसका, और साथ ही जिस स्टाइल में उसको दिखाया गया है वो कॉपीराइट है। तो एक छोटे से प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि कितने तरह के राइट्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से जो हम सिंपल अपना पेन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो इंक फ्लो मैकेनिज्म है, जिस तरह से वो लिखता है वो पेटेंटेड है, जिस तरह से उसका जो लुक है वो डिजाइन है, किस कंपनी का है वो ट्रेडमार्क है। और यदि
किस स्टाइल में लिखा हुआ है वो उसका कॉपीराइट है। चाहे 2 रुपए का पेन हो, चाहे 2 लाख रुपए का पेन हो, उसमें भी 4 से 5 राइट्स यानी बंडल ऑफ राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इनोवेशन के लिए भी जो है सिर्फ एक सिंगल राइट की बात नहीं करते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट में एक से ज्यादा राइट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपने अपना टू व्हीलर इस्तेमाल किया है, या सबसे पहले जो एक रेवोल्यूशनरी कार आई थी नैनो, उसमें भी आप देखेंगे कि 40 से ज्यादा पेटेंट थे। तो आपके स्मार्टफोन में और जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कितने सारे पेटेंट होंगे, कितने सारे कॉपीराइट हैं, कितने डिजाइन हैं और ट्रेडमार्क हैं, इनकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि एक स्मार्टफोन में 2.5 लाख से ज्यादा क्लेम है, एक पेटेंट में 10 क्लेम होते हैं, तो लगभग 2,500 से ज्यादा जो पेटेंट है वो सिर्फ एक स्मार्टफोन में है। यानी आप खुद सोचें कि हम कितनी रॉयल्टी इसके लिए जो है मार्केट में पे करते हैं। और जैसे ही ब्रांड वैल्यू इसकी बढ़ जाती है वैसे ही जो सिमिलर फीचर्स के जो फोन हैं, यदि मान लो चाइनीज आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि 25 से 50 हजार के आसपास वो आपको फ्लैगशिप फोन मिल जाता है। परंतु यदि आप एप्पल का जो 12 प्रो है आईफोन खरीदने जाते हैं, तो वो आपको 1.25 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता है, क्योंकि एप्पल की ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू के साथ साथ उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ जो कोका कोला और मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड का जो आपका जो चिकन है, उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। कहीं भी किसी भी कॉर्नर में आप जाएंगे वही टेस्ट और वही स्मेल मिलेगी। इसलिए इन ये दोनों इसके जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं जो लेआउट प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन यानी ट्रेड सीक्रेट। जोग्राफिकल इंडिकेशंस का जो एक्ट है वो 1999 में लागू हुआ था। ये ऐसा एक्ट है कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किसी तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही हो, या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो रहा हो, या कोई फूड स्टफ हो, या वहां किसी तरह की कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा हो, तो वो जो प्रोडक्ट हैं वो सब जोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर होते हैं। ये ग्रुप राइट है, ये एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये पूरे समूह को मिलता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं ये हैं जैसे दार्जिलिंग की चाय, अम, आगरे का पेठा, बनारसी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मराठी महाराष्ट्र की कढ़ी, और हमारे यहाँ से जो है रतलामी नमकीन, झाबुआ का कड़कनाथ, और साथ ही जो है इंदौर की लेदर टॉयज। इस तरह के जो नाम है ये जो आप लोग सुन रहे हैं, कोल्हापुर की चप्पल, सोलापुर की चादर, ये ऐसे लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के प्रोडक्ट्स रजिस्टर है। इंडिया मध्य प्रदेश से भी लगभग 10 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं, जिनमें जो ग्रुप है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में बनाते हैं जिसमें उनकी जो ओरिजिनलिटी या स्पेशलिटी है वो बरकरार होती है। और वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में महंगे दाम पर मिलता है, पर बिकता है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी फायदा होता है, और जो बायर्स हैं उनको भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को उसके बदले में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ इसके बाद में एक लास्ट और जो हमारी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शंस हैं और फार्मर्स राइट्स का एक्ट है, ये 2001 में लागू हुआ। इसमें आप देखेंगे कि गेहूं की बहुत सारी वैरायटीज आ रही हैं, दालों की बहुत सारी वैरायटी हैं, फूलों की बहुत सारी वैरायटीज हैं। ये सब के सब यदि कोई भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या कोई भी किसान इनको डेवलप करता है, तो उसका जो राइट है उसको 12 से 15 साल तक का राइट मिलता है उस सीड पर, उस प्लांट पर, जिसका वो की रॉयल्टी उसको मिलती रहेगी। जो पर ये जो रजिस्ट्रेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है, और इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद में वो 12 से 15 साल तक उसको एंजॉय कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जो रोज फ्लावर है वो पिंक, व्हाइट, रेड, ये तो बहुत कॉमनली मिलते हैं, परंतु ब्लू और ब्लैक आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। यानी ये ऐसी वैरायटीज हैं जिनको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट ने इन तरह की जो वैरायटीज हैं, ये न्यू वैरायटीज डेवलप की हैं, जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसके अंतर्गत हुआ है। तो इस तरह से 2001 के बाद में किसान और एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, ये जिन्होंने भी नया काम जो कर रहे हैं, वो भी इससे प्रोटेक्ट होते हैं।
तो यहाँ पर कॉपीराइट जो है वो यूनिवर्सल राइट है, वर्ल्ड वाइड है, यानी वर्ल्ड में हर जगह वो मान्य होता है, परंतु बाकी सारे राइट्स जो हैं, जैसा बताया था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ग्रुप राइट होता है, समूह को मिलता है। एक समूह में जो व्यक्ति जुड़ता चला जाएगा वो उसका फायदा एंजॉय कर सकता है, ले सकता है, परंतु कोई इंडिविजुअल चाहे कि ज्योग्राफिकल राइट का फायदा ले तो वो नहीं ले सकता। बाकी सारे राइट्स जो है वो इंडिविजुअल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, स्टार्टअप के लिए भी है। तो कॉपीराइट को छोड़ करके बाकी सारे राइट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की तरह इनको हम इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, जैसे कि हम ये देखते हैं कि फैन है या लैपटॉप है या टीवीज हैं, ये जिन्होंने भी इसका इन्वेंशन किया है या इसको बनाया है, उसको फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में हम तैयार कर सकते हैं। तैयार करके उनके जो है बल्क में इनका हम प्रोडक्शन करके और मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो कस्टमर जो परचेज करेगा, जितना ज्यादा परचेज करेगा उतना ही ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जो जिसका राइट है इन्वेंटर का या पेटेंटी का, उसको रॉयल्टी मिलेगी, कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। प्लीज चेंज द स्लाइड। तो इस तरह से जो मैंने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया कि कॉपीराइट को छोड़ करके ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो यहाँ जो है हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पेटेंट डेटाबेस है, इनमें से यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस है, स्पेस है, ग्लोबपेट है, इंडियन पेटेंट डेटाबेस है, इकस्वा ए है, इकस्वा बी है, इनपेट है, इंस्टॉक है, DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो 2005 के पहले तक जो है हार्ड कॉपीज में ये सारा डेटा जो है स्टोर होता था और इकट्ठा सेफ रखा जाता था। बाद में इसका डिजिटलाइजेशन करने के बाद में इसको CD फॉर्म में जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को जरूरत थी वो उनसे परचेज करते थे। परंतु 2005 के बाद में जो सीन है वो ये चेंज हो गया कि मैक्सिमम जो डेटाबेस है वो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है। हर साल यदि उसका जो पेड डेटाबेस है उसका यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए पर ईयर तक होती है, जिसमें आपको सारा जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है वो अवेलेबल होता है, पेड डेटाबेस होता है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह का जो डेटाबेस है या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रखते हैं या फिर ऐसे बड़े अटॉर्नीज अपने पास में रखते हैं जिनके पास में बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं और जिनको मिलियंस का जो अपना पेटेंट या अदर राइट्स हैं वो एप्लीकेशन फाइल करना होती है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर हमने जो पहले आपको बताया था कि जो पेटेंट डेटाबेस की कड़ी में जो ऑनलाइन पेटेंट डेटाबेस है, तो इसमें आप देखेंगे कि डेरवेंट, माइक्रोपेट और क्वेस्टल और थॉमसन इनोवेशंस ये पेड डेटाबेस हैं जो हाईली पेड डेटा हैं। इसके अलावा बाकी जो है ipindia.nic.in, इस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए इस साइट को आप जरूर याद रखें। दूसरी साइट जो है वो है आपकी uspto.gov। ये जो है अमेरिकन साइट है, इसमें अमेरिकन डेटाबेस मिलता है। और एक है वाइपो, यदि आप गूगल में टाइप करेंगे तो वाइपो की जो साइट है इसमें भी इंटरनेशनली जो भी सिनेरियो है आईपी का उसका डिटेल आपको मिलता है। तो ipindia.nic.in में जितने भी अभी तक एप्लीकेशंस ग्रांट हुई हैं या रजिस्टर हुई हैं या एप्लीकेशन फाइल हुई हैं, उन सभी तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनके डिटेल वहां अवेलेबल होते हैं या पेटेंट अटॉर्नी के पास होते हैं। जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि कोई भी, तो वहां पर जो है दो तरह की एक्शन लेना होता है। एक है प्रायर आर्ट सर्च और दूसरा होता है स्टेट ऑफ आर्ट। प्रायर आर्ट सर्च में जिस तरह से आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताया था, यहाँ पर वो पेटेंट डेटाबेस से आपके टॉपिक को, रिसर्च टॉपिक को देखते हुए आपके किए हुए काम को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में सर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे कि अभी तक इस पर कितना काम हो चुका है, किस किसने काम किया है, और उस सर्च रिपोर्ट के बेसिस पर फिर आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है जब वो तैयार होती है तो वो एप्लीकेशन जो है वो नॉवल एप्लीकेशन होती है और उस एप्लीकेशन पर कोई भी जो ऑब्जेक्शन है वो मिनिमम ऑब्जेक्शन आएंगे और उसमें 90 to 100% चांसेस होते हैं
कि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, आपका जो पेटेंट है वो निश्चित तौर पर ग्रांट होगा। यहाँ पर कल परसों हमारी बात हो रही थी, पारदी साहब को हमने बताया था कि आपके ही जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर कलीग थे भरत गुप्ता जी ने जो है 2 पेटेंट फाइल किए थे। एक उनका नेशनल पेटेंट था जो प्रीपेड एनर्जी मीटर का था कि आपको जो मीटर उन्होंने बनाया है, उस मीटर को यदि आप कोई भी घर में लगाता है, तो पहले से आप जितना अमाउंट पे कर देंगे, अमाउंट खत्म होने के बाद में वो आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ता है। तो इस तरह से जो है प्रीपेड एनर्जी मीटर की जो शुरुआत हुई थी, वो उनको ये 2004 में ही उन्होंने ये पेटेंट लिया था। दूसरी फैसिलिटी उसमें ये प्रोवाइड की थी कि उसमें 5 मिनट का बैकअप भी था, कि अचानक यदि लाइट जाती है, तो बैकअप के थ्रू लाइट जाने के तुरंत बाद में यदि आपके कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई ऐसे हैं, जो डैमेज हो सकते हैं, तो इस 5 मिनट के पीरियड में आप उनको बंद कर सकते हैं, जिससे कि जो फॉल्ट है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट या apparatus को लॉस होने वाला है, उसको रोका जा सकता है। दूसरा उन्होंने जो है एक यूज़फुल वेसल बनाया है, जो एक टंकी नुमा है, जिसमें बिना आपको फिजिकल वर्क किए हुए या किसी फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व किए बगैर आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसकी भी उन्होंने पीसीटी एप्लीकेशन एंड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की थी, और वो एप्लीकेशन जो है 2 साल के भीतर उनकी जो है ग्रांट भी हो गई, और उसका उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत भी कर दी है। बहुत जल्दी वो मार्केट में भी अवेलेबल होगा। तो ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जो पेटेंट की एप्लीकेशन ना सिर्फ फाइल की है, बल्कि ग्रांट के बाद में उसका जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेनिफिट है, वो भी ले रहे हैं। और जो हम लोग सभी लोग जो अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में जो हम फ्यूल पेट्रोल पंप से डलवाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक जो है वो छत बनी हुई होती है। छत के नीचे ही आजकल पंप होते हैं। पहले ये प्रचलन में नहीं था, परंतु ये पंप जो है, ये भोपाल के ही एक इनोवेटर इंजीनियर हैं मिस्टर भटनागर। उन्होंने सेल कंपनी के साथ में मिल करके ये इसका डिजाइन और इसका जो प्रोसेस है, ये डेवलप किया था, और इसका इंटरनेशनल पेटेंट कराया। और सेल के साथ में ये सारे जो भी कैनोपीज बनाई जाती हैं, ये कैनोपी भटनागर और सेल कंपनी जो है जॉइंटली ये बनाते हैं, और उसके बदले में इनको वो रॉयल्टी मिलती है। तो भोपाल से और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आईपी को अपना जो है एप्लीकेशन फाइल भी की है, और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था कि जिस तरह से ये मोबाइल आप देख रहे हैं, इस मोबाइल में जो पुराना वाला स्मार्टफोन है नोकिया का, इसमें ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क में नोकिया, प्रोडक्ट का नाम और स्टार्टअप टोन, ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। कॉपीराइट के अंतर्गत इसके सॉफ्टवेयर, यूजर मैनुअल्स, रिंग टोन्स, स्टार्टअप टोन्स और इमेजेस, ये रजिस्टर हैं। और इसी तरह से पेटेंट और अदर यूटिलिटीज में डेटा प्रोसेसिंग मेथड, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेशंस ऑफ यूजर इंटरफेस, ये रजिस्टर है। जबकि डिजाइन में फॉर्म ऑफ ओवरऑल फोन, अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ द बटन्स, पोजीशन एंड शेप ऑफ द स्क्रीन्स, ये इसमें डिजाइन में रजिस्टर है। जबकि ट्रेड सीक्रेट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नो हाउ जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं और पब्लिश नहीं किए हैं, वो भी रजिस्टर्ड है। दूसरा जो हमने पेन का आपको एग्जांपल दिया था, ये पुराने समय में एक जो है जिसमें क्लॉक चलती थी, वो पेन है, जिसमें आप देखेंगे कि जो पार्क कंपनी है, वो ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। डिजाइन के अंतर्गत उसका जो एक्सटीरियर लुक है वो रजिस्टर है। पेटेंट में जो इंक फ्लो मैकेनिज्म है वो रजिस्टर है, और आईसी सर्किट के अंतर्गत जो क्लॉक डिस्प्ले है वो रजिस्टर है। तो कोई भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो नॉलेज या प्रोसेस प्रोडक्ट है वो न्यू होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और कहीं भी वो पब्लिक डोमेन में ना हो, किसी के नॉलेज में ना हो, और कोई उसको इस्तेमाल ना कर रहा हो, तभी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कैटेगरी में आएगा, और उसको हम रजिस्टर कराने की प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, यही कहा जाता है, आप लोगों को से भी यही अपील है
कि आप यदि कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी इनोवेशन करते हैं, तो इनोवेशन करने के बाद में सबसे पहले आप उसमें ये तलाशें संभावना कि कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत हम इसका जो राइट है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ही आप फिर जो है अपनी जो रिसर्च है उसको आप रिसर्च पेपर में जो जर्नल है कहीं भी यदि आप भेजना चाहते हैं या पब्लिश कराना चाहते हैं तो कराएं, क्योंकि यदि आपने पहले ही उसको पब्लिश करा दिया तो कॉपीराइट तो आपको मिल जाएगा, परंतु उसकी जो प्रोसेस है प्रोडक्ट की, जो पेटेंटिंग की प्रोसेस है या और कोई जो आप राइट उसमें ले सकते थे, उसके लिए आप लूजर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि बिफोर फाइलिंग, बिफोर फॉर पेटेंट, you first file your application, then publish your work। यानी आप कॉपीराइट के लिए तभी जाइए, अपने जो वर्क को पब्लिश करने के लिए तभी जाइए जब आपने जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी हो, ताकि आपका जो राइट है वो लॉस ना हो। क्योंकि यदि वो लॉस हो जाता है तो फिर आपका बड़ा लॉस होगा बजाय छोटे के, क्योंकि कॉपीराइट तो मिल जाएगा परंतु जो पेटेंट में जहां से सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल था वो आप खो देंगे। और इसी तरह से कोई भी जो राइट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, हमको अब एकेडमिक्स के बजाय उसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर इसलिए ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होने से उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होगा और कमर्शियल प्रोडक्शन से आपको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यदि एकेडमिक की तरफ आप ज्यादा जाते हैं तो रिसर्च तो होगी, परंतु उसका जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल आपको मिलेगा, आपका सीवी मजबूत होगा। सीवी स्ट्रांग होने से आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो उतना नहीं मिलेगा या सोसाइटी को भी उतना नहीं मिलेगा जितना जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल जो आईपी राइट्स होते हैं उसमें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, परंतु हमारे पास में अभी जो समय है वो अब हम कितना और आगे बढ़ा सकते हैं नहीं, इसलिए हमने जो है 2-3 स्लाइड में मैक्सिमम जो वो थी कवरेज थे आईपीआर के वो करने की कोशिश की है। अब हम आपको सिर्फ जो है जहां तक हम समझते हैं कि टाइम परमिट कर रहा है तो सिर्फ आप को यही कहेंगे कि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो नॉर्मली कॉपीराइट को छोड़ करके सभी एप्लीकेशंस का जो ऑफिस है फाइल करने का ऑफिस वो मुंबई पेटेंट ऑफिस है, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि ipindia.nic.in की साइट्स पर आप जा करके देखेंगे तो आपको उसका जो डिटेल है वो मिल जाएगा। और कॉपीराइट यदि एप्लीकेशन आप फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप यहीं से कर सकते हैं और दिल्ली ऑफिस में ये फाइल होता है। इसी तरह से यदि हम जो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नॉस कॉम्प्लेक्स का, वहां हमको फाइल करना होती है। तो पूरा एड्रेस नहीं बता करके हम आपको ipindia.nic.in का इसलिए कह रहे हैं कि उस साइट को जैसे ही आप देखते हैं तो आपको तुरंत उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको कॉपीराइट की लिंक भी है उसमें, सुप्रीम कोर्ट की भी लिंक है, इसके अलावा प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन की भी लिंक है। तो वो सारे जो है लिंक्ड वेबसाइट्स के थ्रू आप उसमें भी जा सकते हैं, परंतु खास तौर पर यदि आपको पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के डिटेल देखना है तो आपको इसी साइट के लिंक पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमें स्टॉप करना चाहिए मैम। हाँ सर, टाइम हो गया है एंड मुझे लगता है आपने हाँ इसलिए क्योंकि आपका 2-3 क्वेश्चंस का भी अभी सेशन होगा तो मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीद है कि जो सब्जेक्ट है उसमें उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और जो भी क्वेरीज हैं अभी आप जो लाइव हैं वो तो पूछ ही लें। इसके अलावा भी हमने आपको इसीलिए ईमेल एड्रेस दिया है कि आप फ्यूचर में भी अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर की वो हमारे ऑडियंसेस के लिए एज वेल पर्टिकुलरली हमारे लिए भी बहुत नई जानकारी थी। एंड पेटेंट्स के बारे में वी जनरली ओनली टॉक अबाउट पेटेंट्स, जनरली जो लोगों के मुंह पे नाम चढ़ा होता है अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट पेटेंट्स इनोवेशन के फील्ड में। बट देन यू लिस्टेड आउट सो मेनी टाइटल्स इन्फॉर्मिंग अस in more detail about
how many categories there are where students, I'll be basically referring to my students who will be getting into research and innovation in their further years, जो अपनी research में आगे बढ़ेंगे आने वाले सालों में. तो ये जानकारी उनके लिए, ये प्लेटफॉर्म से वो जो जानकारी लेकर जाएंगे, मुझे लगता है उनको बहुत मदद मिलने वाली है. बहुत सारे हमारे ऐसे ये बहुत अच्छी बात, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स उभर कर आए जिन्होंने अपनी क्वेरीज यहाँ पुट अप की हैं, अपने कमेंट सेक्शन में डाली है. मैं कुछ नोट डाउन कर रही थी कुछ क्वेरीज उनकी. तो सर आपसे हम बच्चों की क्वेरीज पे कुछ और थोड़ी लाइट चाहेंगे. Shall I put up some questions? Okay. So एक हमारी व्यूअर है मोनिका नागर. She asks, what is the most common violation of intellectual property? ऐसा आपके What is the most common violation of intellectual property? क्या आपके देखने में क्या आया इतने सालों में? हमारे देखने में जो आया है वो नॉर्मली 3 जो टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिनमें एक पेटेंट है, दूसरा ट्रेडमार्क है और तीसरा कॉपीराइट है. इनमें से सबसे ज्यादा जो वायलेशन है वो ट्रेडमार्क में होता है. हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं कि चाहे आप बिस्लरी देखें, बिस्लरी की बोतल देखें, या आप नाइक के शूज देखें, नाइकी के, तो इनमें जो है डुप्लीकेसी बहुत है. यहाँ तक कि सोनी के प्रोडक्ट्स में भी जो है बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है. तो सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है कि उसका जो है हम फायदा उठा करके वो ले लें. दूसरा जो है कॉपीराइट में आप देखते हैं कि बहुत सारी जो बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं, लोग कॉपी करके या उसके जो नोट्स हैं वो सेल कर देते हैं. तो यानी सेकंड लार्जेस्ट जो वायलेटिंग इन्फ्रिंजमेंट है वो उसमें होता है. और पेटेंट तो बड़े लेवल पर है, क्योंकि यदि उसमें तो फिर सीधी बात यह है कि कोडेक जैसे कंपनी भी जो है, यदि इसने एक बार पेटेंट का यदि इन्फ्रिंजमेंट किया है तो अदर कंपनीज वॉच करती हैं और लीगली जब स्ट्रांग एक्शन लेती हैं तो यानी ये स्थिति होती है कि कोडेक जैसी कंपनी जो पायनियर थी कैमरा बनाने में, वो कंपनी जो है वो दिवालिया होकर के बिक गई. तो यानी यदि फिर इसमें बहुत हैवी कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है. तो हम कोई भी राइट लें तो इसके लिए हम जो है यदि लीगली आगे बढ़ते हैं तो हमें फ्यूचर में कभी कोई परेशानी नहीं आती. परंतु यदि हम वायलेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको हमें हैवी पेनल्टी भी उसके लिए पे करना पड़ता है. Okay sir. I hope Monica you got your answer from sir. सर आजकल जैसे आपने अभी बुक्स के ही बारे में बोला है ना, उसी तरीके से सर आज दिस इज द टाइम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. तो इन टुडेज ऑनलाइन एजुकेशन मेनी ट्यूटर्स आर यूजिंग कंटेंट. बहुत सारे लोग अपने लेक्चर्स बना के अपलोड करते हैं ऑल, या अपनी जो अपने जो नोट्स हैं जो भी उन्होंने पेन डाउन किया है उसको वो लोग पब्लिक करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं. तो इसको अगर कोई और यूज कर रहा है under his name, so will this be called a infringement of IP? कोई भी आप वेबसाइट यदि आपने बनाई हुई है, अपनी वेबसाइट है और उस वेबसाइट में आपने अपने ओरिजिनल कंटेंट्स को आपने जो है वो अपलोड किया हुआ है जी, तो वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो जाता है, भले उसने रजिस्टर कराया हो या ना कराया हो, क्योंकि डोमेन के अंतर्गत वो जो है उसने उसमें रखा हुआ है. और इसलिए उसमें जो है एक लीगल वो भी दिया होता है कि द मैटर इज कॉपीराइटेड. यदि कोई दूसरा अपने खुद के नाम से उसका यदि यूज कर रहा है कॉमर्शियली एजुकेट करने के लिए, कॉमर्शियल मतलब वो एज ए कोचिंग इस्तेमाल कर रहा है तो वायलेशन है. परंतु यदि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रिसर्च पर्पस के लिए या एकेडमिक पर्पस के लिए, तो वो वायलेशन की कैटेगरी में नहीं आता. परंतु उसमें उसका जो रेफरेंस है उसको कोट करना होगा कि ये जो मैटर है ये हमने यहाँ से लिया. अच्छा, ठीक सर. I have one more interesting question over here. A student asks, suppose I take some design from other source and I modify it. I myself modify it, applying my ideas and concept. Can I go for a patent? No, you can go for design, not for patent. यानी मॉडिफिकेशन यदि आपने किया है, डिजाइन में यदि किया है तो आप न्यू डिजाइन के लिए रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. परंतु जैसा कि डेफिनेशन खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि न्यू
नॉवल, नॉन ऑब्वियस, यूजफुलनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल। यदि ये 4 कैटेगरी फुलफिल करेगा तभी कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस जो है वो पेटेंटेबल कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज यदि आपने कोई डिजाइन लिया है, अपने आइडिया को उसमें आपने ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, तो उसका जो आप जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस ही चेंज कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल अपीयरेंस की कैटेगरी जो है वो डिजाइन एक्ट में आती है, तो आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। Okay, so thank you. And one more, let this be the last question. I have one more question. A student writes, I often find good pictures or quotes on the internet. हैं। Can I use them in my own marketing materials? No, Is this marketing, copyright no, infringement? marketing material is basically the commercial activity. So you can use it for the education or academic purpose, or for the learning purpose, or for the to learn the others, but you cannot use it as a commercial material for your business because it is infringement, and you have to um, uh, pay very heavy penalty. So that's why you have seen so many things that बहुत सारे आपने पोस्टर्स में देखा होगा कि लोगों ने अपने शॉप में जो विदेशी जो एक्टर्स हैं उनके फोटो लगा रखे हैं, या उनका जो कोई सीन लगा रखा है। तो चूंकि वो आके यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ चल जाता है। परंतु यहाँ जिस किसी ने भी यदि उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यदि किसी का फोटो या उसका मैटर इस्तेमाल किया है अपने कंट्री का, तो वो आकर के आपसे पेनल्टी मांग सकता है। इसलिए नॉर्मली लोग जो हैं वो ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे से इररिलेवेंट हो और हमको किसी तरह का जो वायलेशन है उसके लीगल इश्यूज सामने ना आए, ये ध्यान रखें। चोरी तो करते हैं परंतु उसमें भी जो है स्मार्टली करते हैं। Smartly करते हैं। Okay, sir. So I think although questions तो और भी हैं, but time won't permit us. So नहीं, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर वो जो है मेल पर सेंड कर सकते हैं, और हाँ सर, आप हमारे मेल पर सेंड करते हैं कि हम आपको रिप्लाई कर देंगे। Right. So students and viewers, the mail ID although was displayed, still I'll repeat the mail ID. You can note it down. It is PIC PICMPCST97 @gmail.com, है ना। ये मेल आईडी पे जो भी बच्चे, ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से है, एंड रिसर्चर्स जो भी हमारे साथ अभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये बातचीत है कि इफ एट ऑल यू फील यू आर इन्वॉल्व इन रिसर्च और यू थिंक ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन रिसर्च एनी फर्दर, so you any queries you can reach up to sir via a mail, and you can get them clarified, right? Okay, so very informative session, sir. We are so glad to have you here on this platform, and all our thankfulness and gratitude towards you कि आपने अपना we understand how busy as a person, as a chair you are, but still sparing time for these new learners. जो हमारी main audience है वो students है, referred जो हमारी audience है वो students है, upcoming minds हैं. So I think they might have learned very much from this session, I mean, and in their future I think at least 10-20% will go for research and innovation अपने future career में. So I think this is going to benefit their careers. So thank you, sir. I would also like to thank from this platform our very own principal ma'am, Dr. Jyoti Deshmukh, who helps us, who guides us to continue with all such programs, which will be beneficial both for faculties as well as our students. All the HODs who have gathered over here and have their students to be on this platform for a beautiful learning, I think they are also, they should also be congratulated, and my gratitudes towards them too. All my students and viewers who have attended this session, I think this will help you grow brain-wise strongly, and
आई थिंक आपको इन सब की जरूरत फ्यूचर में पड़े, इतना इनोवेशन आपके थ्रू आगे आए. All my wishes to you all, right? So thank you everyone. We should wind up this session. Thank you, sir. Thank you once Thank you, again. Stuti. Thank you to your principal, your faculty members, and your institute also. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.